Hello, everyone. 2 months remain for prelims, April and May. Even if you have had a haphazard style so far, you can create a huge difference by optimizing these 2 months. Now, a lot of people will approach you and tell you things like, you can't create a huge difference in these 2 months. आपकी जो प्रिपरेशन रही है मोटा मोटा वही प्रिपरेशन रहा है, आपके स्कोर्स पे कोई फंडामेंटल शिफ्ट नहीं आ सकता. All of that is 100% inaccurate. We know enough students who built the momentum at this point and then peaked at the right moment. Ultimately, they cleared prelims, right? आपको भी यही momentum build करना है इस time पे, and eventually you need to peak at your prelims day, right? Now, the biggest problem that you face is the fact that you are up against veterans who intuitively understand यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. ऑन द अदर हैंड आपके सिर्फ 2 to 3 years ऑफ प्रिपरेशन हुआ है, एंड दीज इंट्यूशंस आर नॉट फाइन ट्यून्ड व्हेन इट कम्स टू योर एबिलिटीज, राइट? What we have tried to do here is build a system to capture these intuitions, these instincts, so that it adds to your advantage, right? Let's jump in. PYQ micro themes, ये आप सब लोगों को पता है. The fact that UPSC syllabus is irrelevant. PYQ micro themes are your syllabus. In all, we have 17 subjects. अगर हम CSAT को include करें essay optional, then this number goes up to 20. Out of these 20 subjects, 10 subjects are prelim specific. So prelims में आपके 10 subjects आ रहे हैं, right? And these 10 subjects in all contribute to close to 200 micro themes. आपकी मैक्रो पिक्चर ये हो गई, ठीक है? इतना आप सब लोगों को अभी पता होना चाहिए. अगर आप रैंडमली कंटेंट, रैंडमली टेस्ट दे रहे हैं और आपको ये बेसिक फंडामेंटल भी नहीं पता है, दिस इज द राइट टाइम फॉर कोर्स करेक्शन, राइट? अब हम करना क्या चाहते हैं? Essentially, we want to design our first line of defense. What is our first line of defense? There are certain questions, certain topics that veterans are going to get right all the time. The smart veteran aspirants, they are going to get those topics, those questions correct, right? Only because they have given 5 to 6 years to this preparation. अब आपको ये क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं. अगर आप ये क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, देन यू आर आउट ऑफ द रेस इमीडिएटली, बिकॉज वेटरन्स ये क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, राइट? क्वेश्चंस ओवर एंड बियॉन्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो वहां पे ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है? कुछ वेटरन सही करेंगे, कुछ गलत करेंगे, कुछ उनमें से कुछ क्वेश्चंस आप सही करेंगे, कुछ आपसे गलत होंगे, राइट? बट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रिमेन्स सैक्रोसेंट, राइट? अगर आपने क्वेश्चंस यहां से गलत किए, देन यू आर आउट ऑफ द रेस, राइट? What constitutes the first line of defense? This is the part where veterans have good intuition, right? And हम एक systematic approach के through चलेंगे, ठीक है? Let's look at economics, right? Economics में total 25 micro themes हैं, right? In 25 micro themes को we have divided it into 3 categories. One, the micro themes that have blown up. Second, the micro themes that are consistent, and third, the micro themes that are dying, right? अगर हम देखें micro themes that have blown up, right? These are the micro themes where UPSC is focusing a lot. Disproportionate attention है UPSC का on testing these micro themes. क्या है ये? Budget and fiscal policy, right? 4 questions have increased as compared to the previous time period, right? Last 9 years में 18, उसके पहले के time period में 14, right? RBI functions, 8 questions more in this time period, right? Banking regulations, 5 questions more, right? अच्छा, आप एक और चीज यहां पे नोटिस करिए, the latest year where a question has been asked from these micro themes, right? 25, 25, 24, right? So these micro themes are a key focus area. अब अगर आप कोर बुक्स पे रिलाई कर रहे हैं या अपने फाउंडेशन लेक्चर्स पे रिलाई कर रहे हैं, दे डोंट हैव एक्सक्लूसिव फोकस ऑन दीज थीम्स, राइट? वो अपने हिसाब से इजी टू डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से चल रहे हैं, राइट? सो कोर बुक्स विल बी टॉकिंग मोर ऑन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जीडीपी और जीडीपी के वेरिएंट्स, इनकी बातें आपसे ज्यादा हो रही होंगी, ठीक है? नहीं, आपको ये आपके पास ये मटेरियल और ये कंटेंट रेडी होना चाहिए, ठीक है? डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? इससे 0 क्वेश्चंस थे, एंड नाउ यू हैव लाइक क्लोज टू 7 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट? ये इनिशिएटिव्स आपको नहीं छोड़ने हैं.
आई होप बाय दिस पॉइंट दिस एस्पेक्ट इज क्लियर, राइट? अच्छा, यहां पे एक और पॉइंट है, डाइंग माइक्रो थीम्स डजंट मीन दैट इनसे जीरो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की. सर्टेन माइक्रो थीम्स लाइक नेशनल इनकम अकाउंटिंग, लास्ट क्वेश्चन इससे आया है 2019 में, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन अ क्वेश्चन कैन कम दिस ईयर एज वेल, बिकॉज जीडीपी बेस ईयर इस साल रिवाइज हुआ है और हमारी अकाउंटिंग मेथोडोलॉजीज भी इस साल रिवाइज हुई हैं. सो अ क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर. टॉपिक्स लाइक दीज, राइट? ये हो गया. आप फाइनेंस कमीशन सोच लीजिए. फाइनेंस कमीशन अब ऐसा थोड़ी है हर साल कंस्टिट्यूट हो रहा है और अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा है. ये जिन ईयर्स में रेलेवेंट है उन साल इनसे क्वेश्चन आ रहा है. दैट्स वाई ये थोड़ा सा डाइंग वाले कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, बिकॉज फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया. ठीक है, इतना डिस्कशन हो गया. अब विद इन दीज माइक्रो थीम्स हम टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करें? माइक्रो थीम्स आपको समझ आ गई कि भाई हमें डिस्प्रोपोर्शनेटली फोकस करना है इन माइक्रो थीम्स पे, इनका कंटेंट हमारा रेडी होना चाहिए. एंड बेसिक बुक्स का वो अप्रोच नहीं है, राइट? बेसिक बुक्स अपने हिसाब से चल रहे हैं. ठीक है, वो आपको जीडीपी पढ़ा रहे हैं, आपको और टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपको एक ब्रॉडर ओवरव्यू मिल जाए, राइट? आपको एग्जाम के लिए इन टॉपिक्स पे फोकस करना जरूरी है, राइट? नाउ दिस इज अ लिस्ट of micro themes to topics mapping. Now, these are the topics that have been very important throughout the year. इनमें से बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली न्यूज में रही हैं, या बहुत कंट्रोवर्सी में रही हैं, या फिर एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया है, राइट? समथिंग दैट हैज मेड दीज टॉपिक्स इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. And this is the reason why UPSC has a higher probability of asking these. Veterans are going to be very good at identifying such topics, but आपके लिए ये problematic होने वाला है, right? Let's look at these topics, right? सबसे पहले अगर हम देखें budget and fiscal policy, right? You have state finances, CAG, Economic Survey, Finance Commission, नीति, RBI reports. बिल्कुल state finances पूरे साल न्यूज में रहा है. The problem here has been the fact that states की debt उनकी books में नहीं appear हो रही है, right? States are borrowing, but all that debt appears in state PSUs or state discoms that are constantly stressed. Ultimately, अगर कोई problem होगी, उनको states को ही bail out करना पड़ेगा. And states की borrowing भी through different avenues, different mechanisms के through हो रही है, right? Effectively, the problem is that this is a crisis in the making because we don't know the actual debt that states hold. ये प्रॉब्लम सेंटर लेवल पे उतना नहीं है. सेंटर के पास इतने एवेन्यूज नहीं है ये डेटा में डिस्क्रिपेंसीज आए, बट स्टेट लेवल पे ये डिस्क्रिपेंसीज आ रही है. एंड ऑल दीज रिपोर्ट्स हैव फ्लैग्ड दिस इशू, राइट? आपको ये इशू और ज्यादा डिटेल और ज्यादा डेप्थ में पता होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट अगर हम देखें, शिफ्ट फ्रॉम डेफिसिट टारगेटिंग टू डेब्ट टू जीडीपी रेशियो. बिल्कुल, दिस वाज अ पैराडाइम शिफ्ट. अगर आपको फिस्कल डेफिसिट समझना है, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है. बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन, हमारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा होने वाला है. वी आर गोइंग टू स्पेंड मोर, वी आर गोइंग टू क्रिएट मोर सर्विसेज, मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू हैपन, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है, राइट? सो additional borrowing needs to happen because to finance that negative, right? पहले हमारे फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स होते थे जो कि ईयरली बोरोइंग के करस्पॉन्डिंग थे, राइट? नाउ द गवर्नमेंट इज मूविंग अवे फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट टू टोटल डेट टू जीडीपी, राइट? तो फिस्कल डेफिसिट ईयर ऑन ईयर जो हमारा सारा डेफिसिट ऐड होते जाता है वो टोटल डेट, राइट? हमने पहले साल आप मान लिए अगर हमारा 10 रुपए का डेट था, नेक्स्ट ईयर 10 का है, अगले साल 20 का है, तो टोटल 40 हमारा डेट हो गया. सो गवर्नमेंट इज सेइंग दैट अब ये जो 40 नंबर है, राइट, इसको हमें क्लोज टू 50% ऑफ जीडीपी के आसपास लाना है. ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स यू विल नीड टू वेरीफाई. मैं मोटा मोटी जो रिकॉल कर पा रहा हूं उससे आपको बता रहा हूं, राइट? सो इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट in terms of how we want to put constraints on government expenditure, right? अब यहां पे आपके पास इन सारी टर्म से रिलेटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर स्टैटिक क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट? अगला अगर हम देखें गवर्नमेंट बोरिंग सोर्सेज, बिल्कुल ये हमेशा न्यूज में रहा है. अगर हम आरबीआई क्लॉज फंक्शंस देखें, राइट, सो यू कैन सी दैट देयर आर इनकम सोर्सेज, ठीक है, फॉरेक्स मैनेजमेंट, करेंसी प्रिंटिंग चार्जेस, आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर टू सेंटर, इसके बारे में बहुत बातें हुई थी,
right? RBI has been transferring a lot of money to the center, right? And they use this economic capital framework, right? इनके बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए, ये थोड़े से फैक्चुअल चीजें ज्यादा हैं, ठीक है? पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, इसका कॉम्पोजिशन, राइट? आरबीआई का इसके साथ क्या इंटरफेस है, क्या रोल है, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए. इट हैज बीन इन द न्यूज, राइट? बैंकिंग रेगुलेशंस में भी अगर आप देखेंगे, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग, और ये चीजें आपको पूरी पता होनी चाहिए, ठीक है? ट्रेड हैज बीन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस एंटायर ईयर. यूएस, एसेंशियली यूएस ने हमारे अगेंस्ट ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए थे. वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली नेगोशिएटिंग. हम लोगों ने रिकॉर्ड एफटीए साइन किए हैं विथ all the nations, all our partners abroad, right? So trade is becoming an important topic this year, right? Export promotion mission hai. I think these are the two components for the export promotion mission. Export preparedness index नीति आयोग ने शायद जनवरी में पब्लिश किया था. This is important, right? ये हमारे सारे states की export preparedness को assess करता है, right? RoDTEP mechanism has been in the news consistently. It replaces a scheme that WTO has raised questions against. The fact that that scheme was trade distorting, right? उसकी जगह RoDTEP mechanism आया है. ये आपको पढ़ना है, right? So आप देख सकते हैं कि ये सारी टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन टॉपिक्स को अगर आपने कवर नहीं किया है, then it is very hard to assess where your preparation with respect to prelims is, right? This has to be your first line of defense, जैसा हमने पहले बात की थी, right? कुछ और ऑब्जर्वेशंस. हार्डली 2 माइक्रो थीम्स दैट आर 100% स्टैटिक, राइट? ये आपके पास ना बहुत डिबेट आता जाएगा कि स्टैटिक वर्सेस करंट अफेयर्स, ऑल दैट इज नॉइज, ठीक है? नैरेटिव बिल्डिंग है वो सब. यहां अगर आप देखें, देयर आर जस्ट 2-3 माइक्रो थीम्स दैट आर प्योरली स्टैटिक. सेक्टोरल क्लासिफिकेशन, बहुत इजी सवाल आते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर है या कुछ सेकेंडरी सेक्टर है या ये किसको बिलोंग करता है. दीज आर वेरी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस जो सेक्टोरल क्लासिफिकेशन के अंडर है, राइट? एंड देन यू हैव इकोनॉमिक ग्रोथ प्लानिंग, राइट? ऑल द 5-year प्लान्स जिनका जो डाइंग के कैटेगरी में ऑलरेडी आ गए, राइट? ये सब स्टैटिक टॉपिक्स थे, ठीक है? 5-year प्लान्स रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते थे, ये अब सब स्टैटिक में आ गए हैं, राइट? 5-year प्लान जिनसे बहुत क्वेश्चंस आते थे, ये सब स्टैटिक का पार्ट है, बट अब इनसे क्वेश्चंस वैसे ही नहीं आ रहे. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट अगर कोई स्टैटिक क्वेश्चन आना भी है, राइट, आपको पता होना चाहिए वो टॉपिक न्यूज में क्यों है, राइट? सो या फिस्कल टारगेटिंग, फिस्कल डेफिसिट, डेट टू जीडीपी रेशियो, इनसे कुछ स्टैटिक या कुछ डेफिनेशनल, कुछ पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, राइट? बट वो इस साल इसलिए पूछा गया है बिकॉज देयर हैज बीन अ शिफ्ट, right? So static current affairs needs to be connected in that aspect, right? अगर आप अपनी core books रट रहे हैं book page to page, you won't be able to attempt this question, right? आप ऐसे नहीं कर पाएंगे. आपको यही सही टॉप डाउन मैनर में जाना है, ठीक है? करंट अफेयर्स में ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, दीज आर द कंटेम्पररी इश्यूज, राइट? इनकी बातें हो रही हैं, और अब इनसे आपको ये टॉपिक्स एक होलिस्टिकली करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक दोनों रेडी होने चाहिए. दैट इज द होल पॉइंट. सिमिलरली लेट्स लुक एट पॉलिटी, राइट? पॉलिटी में थोड़ा सा स्टैटिक का प्रोपोर्शन और ज्यादा होगा, राइट? बट द सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई. अगर हम बात करें द टॉपिक्स दैट हैव ब्लोन अप, राइट? यू हैव पॉलिटी में इन ऑल यू हैव 31 माइक्रो थीम्स, सो देयर आर मोर नंबर ऑफ माइक्रो थीम्स देन इकोनॉमिक्स, राइट? 11 हैव ब्लोन अप, राइट? 9 are consistent, 11 are losing relevance, right? तो अब losing relevance में क्या है आप देखिए, डीपीएसपी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लास्ट क्वेश्चन 21 है. प्रियम्बल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लास्ट 2021 है, राइट? यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये तो इंपॉर्टेंट है. यूनियन स्टेट 2022 वाले क्वेश्चंस आप फिर भी आपको थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देना होगा, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, ऑल द माइक्रो थीम्स, एक लेवल पे सारी माइक्रो थीम्स इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ वे to further prioritize micro themes. Within the micro themes also आपकी एक prioritization define करने की कोशिश है, right? अब यहां पे आप देखिए, right? Schedule parts, parliament cross procedures, types of bills, election delimitation, amendment, speaker related. Speaker, again the position has been very controversial this entire year, right? इनसे कुछ questions आ सकते हैं, तो ये सब आपको prepare करके चलना है, right? अगर हम फटाफट से पढ़ें, ठीक है, थिंग्स दैट हैव ब्लोन अप,
फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डीपीडीपी एक्ट की बहुत बातें हुई हैं. आई थिंक देयर इज अ कोर्ट जजमेंट पेंडिंग एज वेल, राइट. आरटीआई एक्ट, रिमूविंग पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड, गवर्नमेंट ने भी अपना स्टैंड सपोर्ट करते हुए क्लैरिफिकेशन प्रेजेंट किया है, राइट. जुडिशरी अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ जजेस, राइट. करप्शन इन जुडिशरी को लेके पूरे साल न्यूज रही है. फॉर द फर्स्ट टाइम आई बिलीव impeachment of a high court judge is being carried out. So UPSC is not going to ask you controversial questions, but appointment related, right, qualifications related, ये questions judges को लेके आ सकते हैं. ठीक है. अगर हम अब देखें पार्लियामेंट क्रॉस प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट क्रॉस प्रोसीजर्स में इतनी लंबी लिस्ट है और आपको ये सब चीजें पता होनी जरूरी है. यू कांट बी रिलाइंग ऑन कोर बुक्स, राइट. ये सारी चीजें करंट अफेयर्स में रही है. ठीक है. MPs कैन स्पीक ओनली एज पर पार्लियामेंट्री रूल्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 105 फ्रीडम ऑफ स्पीच. आपको पूरा रेडी करना है. सस्पेंशन ऑफ MLAs, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंक्लूडिंग आर्टिकल 119 194, ये सारी चीजें रिपीटेडली न्यूज में रही है एंड यू हैव टू कवर दीज, राइट. सो यू नीड टू गेट होल्ड ऑफ दीज सिस्टम्स. इसमें आप अब अपने टॉपिक्स ऐड करिए, अपने आपको जो लगता है कि दीज टॉपिक्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इस 100 की 200 तक की लिस्ट बनाइए, राइट. ज्यादा ओवर कंटेंट कंजम्पशन एंड गिविंग टू मेनी टेस्ट वोंट हेल्प यू. आपके पास ये फंडामेंटल्स सबसे पहले क्लियर होने जरूरी है, राइट. Get your systems right, build your version for the first 100 most important topics, then you move on to the next 100, ठीक है. And in this process, you can't be ignoring your fundamentals, right? There are certain micro themes that are static, जैसा हम लोगों ने देखा था, static oriented ज्यादा है, वो आपको ignore नहीं करने हैं. There are certain micro themes that are static, वो आपको ignore नहीं करने हैं, वो हर aspirant को पता होते हैं, right? And ऐसे बहुत सारी micro themes हैं जो static हैं, वो आपको इग्नोर नहीं करनी है. आई बिलीव एवरी सीरियस एस्पिरेंट ऑलरेडी नोज द काइंड ऑफ स्टैटिक टॉपिक्स, माइक्रो थीम्स दैट यूपीएससी इज आस्किंग फॉर, राइट. ज्योग्राफी अगर हम बात करें, द होल एंटायर रिवर सिस्टम्स, राइट. आपको लेवल ऑफ डेप्थ ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, ये आपको पता होनी बहुत जरूरी है, राइट. कहां से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, राइट. लेवल 2 के कहां मोर डिटेल्ड क्वेश्चंस are there, right. Geographical phenomena से related questions आ रहे हैं, ठीक है. Level 3 is even more deeper. तो आपके पास इस लेवल की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, ठीक है. And for all the static topics, refer to dominate notes, refer to super maps, जहां पे ये सारी डिटेल्स, सारे नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है. And this should ensure that this topic is closed for you, right. So get hold of all these systems. कोई superficial reading आपको नहीं करनी है. आपको जो desired depth में जो topic पढ़नी है, that is given in the material, and you have to build your systems on top of these frameworks, right. Elimination techniques is another important pillar that you need to master. If you haven't had a chance to develop elimination techniques, then attend the PYQ series here, जहां पे अक्रॉस द इयर्स सारे PYQs कवर करते हुए आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा. ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर यू टू बी एबल टू एस प्रीलिम्स, राइट. गेट इन टच विद अस, गेट दीज डॉक्यूमेंट्स, गेट दीज फ्रेमवर्क, एंड स्पेंड द नेक्स्ट 2 months on these. Thank you.